वेलकम टू ब्रेकिंग द नॉर्म्स पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट सारिका भारद्वाज और आज हमारे साथ है ट्रूली स्पेशल गेस्ट सृजन पाल सिंह। ही वर्कड वेरी क्लोजली विद द फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम and he has taken deep initiative in reforming education and environmental sustainability. So welcome sir to our show. Thank you Sarika, happy to be here. Thank you sir. So sir, how do you see where India is going with the current politics and all the things happening in India currently with the AI and everything? See, politics is a part of democracy. Politics किधर भी जाए, India will go in a better place regardless of who is in politics. Of course, थोड़ा direction आगे पीछे हो सकता है, but more than politics, what's important is the people of India. The people of India today are amongst the youngest in the world. We still have the largest young youth population of the world. Of course, we have the largest population of the world as well. India today is growing in its economic growth. Will soon be, I'm hoping, number 3, number 2, number 1 भी पहुंच सकते हैं. लेकिन अभी निकट भविष्य में will be amongst the top 3-4 economies of the world. We have a very promising critical technology sector. Critical technology मतलब things like space, like defense, like biosciences, nanotechnology. We are working on quantum computers also. We are working on hydrogen fuel also. So India is now bold enough to work on the cutting edge technologies of the world. We have the capability, and more than capability also we have confidence now, especially after Chandrayaan 3. All that has happened. We are the world's largest English speaking population. We are of course the world's largest. हिंदी भी सबसे ज़्यादा हम ही बोलते हैं, हिंदी तो हमारी है. हमारी पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि हमें अपनी संस्कृति पर उतना ही भरोसा है जितना हमारे वर्तमान पर हमें विश्वास है. हम उस संस्कृति को जिसको हम उसको लुक डाउन करते थे कि ये रूढ़िवादी है, ये पुरानी सोच है, आज हमें ये पता लग रहा है कि हमारी ही हेरिटेज कितनी रिच थी और हम उसको ना सिर्फ खुद में अडॉप्ट कर रहे हैं बल्कि हम दुनिया हमारा अनुसरण हमें फॉलो कर रही है, राइट? सो इट्स अ मार्वेलस टाइम टू बी इन इंडिया. You have a large population, stable, growing economy. You have rapidly expanding industries. You have bold people who are unafraid to try new ideas, whether through startups or through even government projects. And also, you are in a society which is proud of its heritage and has a very positive outlook of its future. This is India of today. Now, India also has problems. India, by the virtue of us being diverse in terms of religion, region, language, food, and so on, we have our differences. And we know how to live with our differences. We don't need a foreigner to tell us कि हम क्या सही कर रहे हैं डाइवर्सिटी या डेमोक्रेसी में. हमें पता है, हमने गणतंत्र बहुत पहले बनाए थे. गणतंत्र का मतलब नहीं पता था लोगों को. The idea of republic didn't exist when India had गणराज्य. और ये अशोक के उस काल के समय में गणराज्य होते थे. गणराज्य में लोग वोटिंग करते थे किसी प्रकार से, ठीक है? तो इट्स नॉट नेसेसरली अ डेमोक्रेसी. गणराज्य मीन्स कि राजा का बेटा राजा नहीं बन जाता. ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत साल पुराना है, हजारों साल पुराना है. सो this India has such great opportunity. And the best part is that when India is going to grow with this ideology, हम divisive नहीं होते. हम दुनिया पे राज करने का तो हमारा स्कोप ही नहीं. It's beyond our syllabus. We don't want to do this. हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम अपने लोगों को, जो भी गरीबी रेखा के नीचे बचे लोग हैं, हम उनको उसके ऊपर वापस लाएं. हम लोगों को बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करें, एक सोशल सिक्योरिटी नेट दें, और हम रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ करें जिससे ना सिर्फ हम अपने को फायदा करें बल्कि हम उन देशों का फायदा करें जो देश अभी उतने इकोनॉमिकली सॉलिड नहीं बने, इतने शक्तिशाली नहीं बने, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं. वी सॉ दैट ड्यूरिंग वैक्सीन्स, है ना, व्हेन वी मेड वैक्सीन्स फॉर आवरसेल्व्स बट वी आल्सो गिव इट टू अदर्स व्हाइल वी डिडंट हैव द फुल कोटा फॉर अस बिकॉज दे आल्सो नीडेड देयर frontline workers needed those vaccines, so we gave it to them. We sent them masks, we sent them everything. So despite the fact that others didn't do that to us, जैसा व्यवहार दूसरों ने हमारे साथ किया, ऐसा नहीं है कि हम अपने से जो इकोनॉमिकली अक्षम लोग हैं हम उनके साथ वही व्यवहार रिपीट करते हैं. हम उसको फिल्टर करके, सही करके, अपने कल्चरल फिल्टर में डाल करके फिर हम करते हैं कोई चीज. तो when India grows, the world stays happy and peaceful. So it's a very good time to be in India, but of course मेहनत करनी पड़ेगी. और वो मेरे ख्याल में सरकार और पॉलिटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. लोग मेहनती हैं इस देश के, लोग बहुत मेहनती हैं और लोग बहुत सहनशील हैं. और लोगों के अंदर बाय डिजाइन इंडियन डीएनए इज एकोमोडेटिव. जिस तरह की बातें आप विदेशों में देखिए, अभी कैसी कैसी बातें हो रही हैं ना, हर चीज पर डिवीजन. अमेरिका इज डिवाइडेड, एलजीबीटीक्यू पे डिवाइडेड है.
इंडिया में तो हमारे रिलीजन में पहले से ही इसका स्थान था। महाभारत में तो अर्जुन ने ही वो रूप धारण कर लिया था जब वो अज्ञातवास में गए थे। तो इट्स नॉट अनयूजुअल फॉर अस, है ना। यूरोपियंस आर फाइटिंग ओवर कलर, ओवर लैंग्वेज, अभी भी फाइट कर रहे हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज और कलर का तो कोई फाइट ही नहीं है, हम तो खाना ही एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। सो वी आर अ सोसाइटी विच इज एट डीएनए extremely resilient. So I think India has a great time. You have to, if you are a student, if you are a college student or a school student or a young person who is getting into the job market, remember that this is the best place and best time to be in this land, India. This is the time of growth. And sir, what about the religion conflict जो बहुत ज़्यादा commonly हमको देखा जाता है? You know, even when the two parties are talking, one party will take side of one religion, another party will take side of another religion, and then उसी मुद्दे को लेके the election, the vote, everything happens. तो what is your take on that कि जब इंडिया इतना आगे बढ़ गया है, you know, where we are proud of our history, हम अपने history से we are making our present better, okay? So why are we still talking about, you know, religion thing? Why we do not see, you know, all human as one in India, but we still talk about this? ये टॉपिक जो रहता है एक बहुत कॉमन है और बहुत टाइम से चलता आया है, काफी डेकेड से। आपको पता है भारत का अर्थ क्या होता है? आप बताइए सर, आप ज्यादा शब्द भारत आता है, भारत का अर्थ होता है कैरियर्स ऑफ लाइट, प्रकाश वो जो लेके चलते हैं, हाँ। प्रकाशित करते चलते हैं अपना पथ, वो भारत होता है। ये अर्थ है भारत का। और हम सब, चाहे आप किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी भारत के किसी भाग से हों, आप हैं तो वही कैरियर ऑफ लाइट। डीएनए तो हम सबका वही है। सो डिफरेंसेस दिखते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस कुछ एम्पलीफाई भी हो जाते हैं। कभी कभी मीडिया का एक पिटफॉल होता है कि नेगेटिव स्टोरी जल्दी प्रोपिगेट होती है। नेगेटिव ब्रेन में ऐसे ही होता है, तो आपके ब्रेन नेगेटिव चीजों को जल्दी, क्योंकि डर आता है, तो डर की वजह से वो तुरंत हाईलाइट कर देता है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी कहानियां हैं जहां पर ऐसा लोगों ने अक्रॉस द बाउंड्रीज जाकर के एक दूसरे की मदद करी है। भारत में अग्नि मिसाइल बनाने वाले व्यक्ति का नाम अब्दुल कलाम है ना। भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाले का नाम भी अब्दुल कलाम है। भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने वाले का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। सो ऐसे अलग अलग लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत किसी एक धर्म या एक जाति ने बनाया, भारत सबने बनाया, और हम सब उसी डीएनए से। अब कुछ डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल है। और वो डिफरेंसेस कैसे जा सकते हैं? डिफरेंसेस जा रहे हैं जैसे जैसे देखिए ग्रोथ होती है, जैसे जब लोग मिक्स होना शुरू होते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को, परिश्रम को, कठिनाइयों को समझते हैं, तो ये रियलाइज होता है कि हम सब एक जैसे होते हैं। हर धर्म में दो पार्ट होते हैं, थियोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी। थियोलॉजी कहती है कि आप पूजा कैसे करेंगे, आप पूजा करेंगे या नमाज करेंगे, आप ऐसे हाथ करेंगे या ऐसे हाथ करेंगे, है ना, या आप किसी और प्रकार से करेंगे, है ना, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, ये सब थियोलॉजी है। कोई भी धर्म की अगर आप थियोलॉजी को चैलेंज करेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा ना। मैं आपकी थियोलॉजी चैलेंज करूंगा, आपको नहीं पसंद आएगा ना, आपको ना उल्टा करने में भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन स्पिरिचुअली ऑल रिलीजन्स आर सेम। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कहता है झूठ बोलिए बहुत अच्छा है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो कहता है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान मत करिए। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कहता है कि आप अपनी जन्मभूमि के लिए अपने सब कुछ अर्पित मत करिए। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहता है कि एक सुप्रीम पावर है जिसने हम सबको बराबर बनाया है और जीव जंतु भी बराबर है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ये नहीं कहता कि दया, करुणा और पीस गलत है। सब कहते हैं ये करिए। स्पिरिचुअली सारी रिलीजन एक जैसी है। हाँ सर, स्पिरिचुअल बताने का तरीका अलग है। हाँ, है ना। अब समस्या ये है कि हम कॉमनैलिटी, जो कॉमन फोर्सेस हैं, उस पर फोकस नहीं करेंगे, और जो हमारे डिफरेंसेस हैं बताने के, मतलब हम लक्ष्य एक है, पथ अलग अलग है। अब ये कहें कि आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, इसलिए आपसे मेरी डिफरेंस आ गई, ये एक तरीका है। और ये देखना कि मेरा और आपका लक्ष्य एक ही है, तो हम जा तो एक ही तरफ रहे हैं, तो मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरी मदद करो। दैट इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर कलाम जैसे, मैं तो आई वर्कड विद हिम फॉर 7 years ना, 7 साल अंतिम पल तक मैं उनके साथ था। And he said last words also to you. हाँ, गीता पढ़ते थे वो। हाँ। अब
कहने को भाई क्यों किताब पढ़े, लेकिन कहते थे अच्छी चीज लिखी है तो पढ़ना है मुझे। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपने दायरे में बंध गया हूं। अगर मैं एक धर्म का हूं, कोई भी आप में से जो सुन रहे हैं वो भी और आप भी, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी धर्म के बारे में पढ़िए, सबके बारे में पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हर जगह अच्छा लिखा होगा। आप किताब की तरह पढ़िए, ज्ञान की तरह पढ़िए, जो अच्छा लगे उसको ले लीजिए, जो नहीं अच्छा लगे मत लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये थोड़ी ना कह रहा है कि सब लेना जरूरी है। एंड दैट इज स्वतंत्रता। ये देश आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म से कुछ भी अच्छा ले सकते हैं। बहुत से देश ऐसा धर्म नहीं देते, ऐसा स्वतंत्रता आपको नहीं देते हैं। आप ईरान में जाएंगे, ये फ्रीडम आपको नहीं है, आप ब्लास्फेमी हो जाएगी आपके ऊपर। खैर बहुत कठोर सजाएं हैं इसके लिए, लेकिन भारत में आप कर सकते हैं। तो भारत में रहने का इसका आनंद उठाइए, अलग अलग धर्मों से नई नई चीजें सीखिए, और जो अच्छा लगे उसको अपने में इम्बाइब कीजिए। और ये सब जो ये है ना कि हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के, आपके भी और मेरे भी ऐसे दोस्त होंगे जो दूसरे धर्म के होंगे, डेफिनेटली, है ना, दूसरे पंथ के होंगे, दूसरे राज्य के होंगे, दूसरी भाषा बोलते होंगे, दूसरी पॉलिटिकल विचारधारा होगी। आप राइट होंगे, वो लेफ्ट होंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, डिस्कशन तो कर ही सकते हैं ना। मेरी चिंता तब आ रही है कि जब कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि जो मैं हूं वो सही है, बिल्कुल सही है। आप अपने आप को सही मानिए, मैं अपने आप को सही मानता हूं, बट ये कहना कि मैं ही सही हूं, ये अहंकार है। So we should not get into this. I am right is fine, but I am the only person right is arrogance, and we should not get there. This country's DNA is not arrogant. है ना? ठीक है सर, maybe not every religion is true, but there is a truth in every religion. Yes, I mean there is a truth in everything. I think every person, book, religion, concept, there is something good to learn from it. हम चुनते हैं कि हमें क्या सीखना है, अच्छी चीज या बुरी चीज। दिन में 24 घंटे हैं, 8 घंटा आप सोते हैं, 16 घंटे बचते हैं। उन 16 घंटों में आपको क्या सीखना है, कहाँ उसका निवेश करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो आपकी मर्जी है। उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं, क्योंकि आप स्वतंत्र राष्ट्र हैं, आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं। आपके पास कोई भी किताब पढ़ने का आपके पास क्षमता है, आपको पैसे भी होंगे, जनरली लोगों के पास किताब खरीदने के तो इतना तो धन है आपके पास, तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप बेकार की चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स में, हर चीज को नेगेटिविटी से देखने में, हर व्यक्ति, हर धर्म में क्या बुराई है, तो सब कुछ बुरा है। पर सर मीडिया में तो यही न्यूज चैनल में जो है आजकल ब्रेकिंग न्यूज और ये सब मतलब दिखाया ही एक नेगेटिव वे में जाता है। तो जो एक नॉर्मल क्राउड है, जनता जो टीवी देखता है सर, वो तो इन्फ्लुएंस होता ही है ना। आप और मैं जैसे अब वी कैन चूज की 16 घंटे है टू डू प्रोडक्टिविटी। देखिए टीवी 16 घंटे नहीं हम नहीं, बट कुछ लोग हैं, बट उनके माइंड को तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना, वो मैन्युपुलेट हो रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीजें डाली जा रही है। देखिए अगर लार्जर लेवल में आप देखेंगे, जो मास ऑडियंस है हमारी, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो टीवी देखती है, टीवी पे जो होता है वो उसको सच मानती है, स्पेशली ऑन न्यूज, राइट। और आप ही कह रहे हैं कि जो न्यूज चैनल वगैरह होते हैं ये नेगेटिव उस पे वर्क करता ज्यादा फोकस करता। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ही के सवाल से, लंबा सवाल था। शिक्षा से ये निर्धारित नहीं होता कि व्यक्ति कितना विवेकवान है। विवेक आता है अंदर से, शिक्षा तो बाहर से आती है। हाँ, शिक्षा और विवेक के बीच में ये लिंक हो सकता है कि आपको चीजें पता होती है, तो आप चौकन्ने रहते हैं कि आपसे गलती ना हो जाए। लेकिन मैंने बहुत सारे भटके लोग देखे हैं जो काफी शिक्षित होते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे बहुत ही विवेक वाले व्यक्ति, बहुत विजडम वाले लोगों को देखा है जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती। तो इन दोनों में कोई जरूरी नहीं है कि लिंकेज हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहली बात यह है कि मीडिया जो है सब कुछ, इज मीडिया द ओनली मिरर ऑफ ऑल दैट इट इज ट्रू? इट्स नॉट। आई एम नॉट इवन सेइंग मीडिया इज फॉल्स। सेलेक्टिव है, झूठ नहीं बोलती, लेकिन एक तरफ का सच बोलती है कभी कभी, या बताया हुआ सच। हाँ, जो भी होता है, और कभी कभी अनइंटेंशनल भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी इजी टू विलिफाई। आसान काम नहीं होता मीडिया में चलाना, क्योंकि आपको तुरंत की तुरंत न्यूज देनी है। तो वेरीफाई करने का, उसको क्रॉस वेरीफाई करना, उसके 4 सोर्सेस चेक करना, उसका काउंटर चेक करने का समय नहीं होता। इट्स द नेचर ऑफ मीडिया आल्सो। बन गया ऐसा नेचर, बिकॉज 24 घंटा आपको न्यूज चलानी है, 24 घंटा न्यूज निकालनी है, तुरंत ब्रेकिंग न्यूज करनी है। तो उसमें जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो मुश्किल है। जब आप अखबार निकालते हैं तो आपके पास एक पूरी रात होती है संपादक के पास, जो एडिटर होता है, कि वो जो भी फैक्चुअल करेक्शन करने हैं या रीचेक करना है या हटाना है कोई स्टोरी तो हटा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा नहीं होता। सो देयर इज अ नेचर ऑफ दिस थिंग।
बट आप सुनिए सबकी, लेकिन अपने हिसाब से निर्धारित कीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका यह है कि कभी एक न्यूज चैनल नहीं सुनना चाहिए। हो सकता है वो बायस्ड हो, और हो सकता है वो इनहेरेंटली बायस्ड हो, क्योंकि आदमी वही दिखाता है जो उसको समझ में आता है। आप 3-4 चीजों को देखिए बिफोर यू वेरीफाई समथिंग। अगर आप एक राइट विंग चैनल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो वेबसाइट पर हो, अगर आप उसको देखते हैं तो आप लेफ्ट विंग वाले को भी देखिए, और अगर आप लेफ्ट विंग देखते हैं तो आप राइट विंग वाले को भी देखिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम हर चीज को ब्लॉक कर देते हैं, कि जो हमने सुनना नहीं है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। ये सोशल मीडिया हैबिट है। अगर आप इफ आई डोंट लाइक यू एंड यू डोंट लाइक मी, विल ब्लॉक ईच अदर, है ना। ब्लॉक का तो कॉन्टेस्ट लोग खेलते रहते हैं। ब्लॉक करने का ये जो आदत है ना, कि मैं किसी को साइलेंट कर सकता हूँ, ये पावर तो लगती है, बट एक्चुअली में नुकसान आपका होता है, क्योंकि वो साइलेंट नहीं हुआ आपके लिए साइलेंट, आप बहरे हो गए। वो गूंगा नहीं होता है, आप बहरे हो जाते हैं। लेकिन हम ब्लॉक कर करके खेलते रहते हैं लोगों के साथ, ये आदत बन गई है। सो पीपल आर हियरिंग ओनली फ्रॉम दोज पीपल एंड दोज एजेंसीज जो उनके एग्जिस्टिंग व्यू पॉइंट को और सॉलिडिफाई करते हैं, उसी को नर्चर करते रहते हैं। तो वो जो मेरा विचारधारा है वो इतनी बड़ी हो जाती है कुछ समय में कि अब मैं दूसरी तरफ झुक ही नहीं सकता। झुक तो सोचिए, मैं सुन भी नहीं सकता। मुझे लगता है ये लोग पागल हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है मेरी दुनिया में सिर्फ ऐसे ही लोग रहते हैं। तो ये कौन सा है, ये कैसी बात है, कैसा मूर्ख व्यक्ति है। हम ये नहीं समझते कि वो भी यही सुन रहा है, वो दूसरी तरीके से सुन रहा है, तो फिर टकराव आता है। दैट इज द प्रॉब्लम। सो अगर इस चीज को अवॉइड करना है तो पहला काम तो जितने लोगों को आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट में ब्लॉक किया है, अनलेस वो ऑब्नॉक्शियस लोग हों, कुछ और ही उनकी इंटेंशन हो, उनको अनब्लॉक कीजिए। पॉलिटिकल विचारधारा पे अगर आपने किसी को भी ब्लॉक किया है, या रिलीजियस विचारधारा पे ब्लॉक किया है, उसको अनब्लॉक करिए, बोलने दीजिए। सुनिए, आप ही को फायदा होगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कुछ और भी एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो ये करिए। अगर आप एक तरह का, दूसरी चीज ये करिए कि अगर आप एक तरह की न्यूज सुनते हैं तो आप दूसरे खेमे से भी न्यूज सुनिए। तो अगर आप मोदी जी को फॉलो करते हैं तो आप राहुल गांधी की भी बात सुनिए, और अगर आप राहुल जी को फॉलो करते हैं तो आप केजरीवाल की भी बात सुनिए, एंड सो ऑन। तो आप सबकी बात सुनिए, क्योंकि तभी आप सही मायने में अपनी विचारधारा को पॉलिश कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा बदल लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन डेटा तो आने दीजिए, पता तो लगे हो क्या रहा है। अदरवाइज तो वी बिकम, हम अपने आप को ही इम्प्रिजन कर दे रहे हैं। सबको ब्लॉक कर दो जो मुझे पसंद नहीं करते, जो मेरे जैसी बात नहीं करते, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि किसी ना किसी बात पे इवन द बेस्ट फ्रेंड्स विल डिफर। तो ऐसे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं इको चेंबर बन जाऊंगा, खुद ही अपनी बात सुनूंगा। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। And sir, what about the AI? What is your take on AI? AI is a fantastic thing if you are looking for automating, अगर आपको काम आसान करना है, अगर आपको काम की क्वालिटी बढ़ानी है। लेकिन AI is also a very dangerous thing। अगर आपको जॉब्स बचा के रखने हैं, you get कुछ भी आप टाइप करिए, you get the entire ingredient or method that how can you make this thing और how can you get this thing। आपको पूरा एक डाटा मिल जाता है जो पहले अवेलेबल नहीं था, राइट। एंड आज की डेट में आई थिंक चिल्ड्रन आर मोर into this iPad and internet. So what do you think, how it will affect the children? See, so there are two questions to part to it. AI, is it affecting our lives? Of course it will affect our lives. 30 crore jobs will be replaced in the next 3-4 years. 30 crore and worldwide. 30 करोड़ जॉब का मतलब होता है एक जॉब पे अगर 4-5 लोग हैं निर्भर परिवार, तो दुनिया की एक 20 से 25% पॉपुलेशन विल गेट अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, और नेगेटिवली अफेक्टेड बिकॉज इन लोगों के जॉब्स जाएंगे। अगर आप सोचो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम दिल्ली शहर में हैं, एनसीआर में। इस पूरे एनसीआर रीजन में होंगे लगभग 1 लाख ड्राइवर्स, ऑटो, उबर, ओला, ट्रक मिला करके 1 लाख ड्राइवर्स होंगे। अगर सारी गाड़ियां ऑटोमेट हो जाएं, जो हो जाएंगी अगले 5 साल 10 साल में, तो 1 लाख ड्राइवर्स आर आउट ऑफ जॉब्स। कम से कम 40-50 हजार मैकेनिक्स आर आउट ऑफ जॉब्स, एंड देयर विल बी अदर सपोर्ट स्टाफ जो व्हीकल्स का टेक केयर करते हैं, जो गाड़ियां इंसान चला रहे हैं इसलिए उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो होंगे 20-25 हजार लोग। तो सिर्फ एनसीआर रीजन में, सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन में कम से कम 1.5 से 2 लाख जॉब्स विल बी लॉस्ट जस्ट बाय वन ऑटोमेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। सिर्फ गाड़ियां ऑटोमेट होने से 2 लाख लोगों की जॉब्स जा सकती हैं। So sir, is it like right to be dependent on technology so much? You have a choice. Will you let go of your phone? You'll not. Will you go back to your old
डायल वाला फोन. We can't do that. That's my problem. People think we can undo technology, we can stop technology. You can't. जो देश ऐसा नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, और वो पीछे रह जाएगा फिर उसको कैचअप करने में बहुत टाइम लगेगा. एक नया कॉलोनाइजेशन होगा फिर, क्योंकि जो लोग पीछे कैसे रह जाएगा, कोई नहीं रहेगा पीछे. अल्टीमेटली who will say कि no, we will not do automation, we will not mechanize, unless सारे देश आपस में डिसाइड कर लें, जो बड़ा मुश्किल होगा. It will take a lot of time. The only thing we can do as citizens right now and as a country right now is to ensure our population is ready to face this world. हम फ्यूचरिस्टिक रहे एजुकेशन में, बैकवर्ड नहीं रहे. इतिहास से उतना ही लो जितना पोषक है ना, कविता है हिंदी में, जीर्ण शीर्ण का मुंह है मृत्यु का द्योतक. इतिहास से उतना ही लो जितना है पोषक, यानी न्यूट्रिशियस जितना है. सो वी शुड फोकस ऑन द फ्यूचर एंड नॉट द पास्ट, एंड वी शुड फोकस ऑन हाउ डू वी मेक आवर यंग पीपल ready for this new AI future जो आने वाला है. And what about the current people? That's a good question. That's the third thing I was telling you. People who lose jobs, what do you do with them? Yeah. अगर एक ट्रक ड्राइवर का लॉस्ट होगा जॉब, तो मैं उसको AI प्रोग्रामर थोड़ी ना बना दूंगा 50 साल की उम्र में. कैसे बनाऊंगा मैं उसको? नहीं बनेगा. We'll have to create a safety net for that. It will hit us, and it is as seriously going to hit us as climate changes. दुनिया में जितना बड़ा क्राइसिस क्लाइमेट चेंज है, उतना ही बड़ा क्राइसिस होने वाला है AI से होने वाला जॉब लॉस. AI खुद नहीं होगा. There will be growth. Your stock market will go up. The economy will keep growing, but jobs will not happen. You'll have a jobless growth. There's something called economy में jobless growth. तो growth तो हो रही है, jobs नहीं बन रही. और India is going through that already. If you look at IT majors from TCS to Infosys and so on, दसियों हजारों jobs कम हो गई हैं. But the company stocks are all-time high, which means there is growth, but there is no job. And that is very worrisome because it's going to affect the younger people. So हमें सबसे पहले तो इसमें फोकस्ड अप्रोच ये करनी होगी कि we make our young people AI के टाइम में जॉब रेडी. ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन लोग नहीं मिलते. लोग हैं, जॉब्स नहीं मिलती. इसका मतलब कहीं स्किल में मिसमैच है. So we have to address that. And long term में we'll have to figure out कि कितना भी हम कर लें, there will be people whose jobs will be replaced by AI and who will not be retrained to get into this new job market. What do you do with them? उसके लिए safety net बनाना पड़ेगा. We'll have to create a taxation and a fund so that at least these people get some basic things, basic amenities of life are taken care of. But it's not a great thing to do. अगर आपको ऐसी population ऐसी बननी शुरू हो जाए और पूरी दुनिया में ऐसा हो जाए कि लोग AI से जॉब लॉस करके जॉबलेस हो जाएं और फिर वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो कि कैसे खाना मिलेगा, कैसे कपड़ा मिलेगा, कैसे मकान मिलेगा. It's not a very pretty sight. It's not the best thing to happen. There'll be restlessness. फिर तो रेस्टलेस हो जाएंगे लोग काफी. हाँ, तो लोग क्या करेंगे? लोग इसलिए इन चीजों की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी. And who is preparing for all of Nobody. this? Then who's preparing? We don't even see it seriously. Do we have a national emergency like climate change? Are we talking about AI? कि क्या AI से job loss होगा? Is there a body in any country which is talking about कि AI से जो जॉब लॉस होगा उसका हम क्या करें? तो सर टेक्नोलॉजी डेवलप किए जा रहे हैं, पर उससे बचाव कैसे करेंगे, उसका कोई रीजन वो नहीं है, सॉल्यूशन. बचाव नहीं करेंगे, हमें अडैप्ट करना होगा. पहले तो सर बचाव होगा ना, जो नुकसान होगा उसका क्या? नहीं, आपको लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा. और इतनी सारी जनता को कैसे करेंगे? That's a good question and we do not have an answer to that. Especially a country like India will face it more because हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जॉब सीकर्स हैं बिकॉज यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है. जिसका मतलब एम्प्लॉयबल पीपल बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ. और क्योंकि हमारे यहाँ रिटायर्ड लोग कम है कंपेरेटिवली कंपेयर टू अदर कंट्रीज. चाइना की कंपैरिजन करें तो चाइना का पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है, वो रिटायर्ड है, उन्होंने अपना पैसा कमा लिया है, उसी के इंटरेस्ट से वो चल जाएंगे. इंडिया में ऐसा नहीं है. सो वी विल हैव टू क्रिएट एन एक्टिव नेट ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट जॉब लॉसेस. फिर भी जॉब लॉस होंगी क्योंकि ऑटोमेशन तो होना ही. डिले कर सकते हैं, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, बट आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं. वी आर सेटिंग अप ड्राइविंग स्कूल्स फॉर इंस्टेंस अक्रॉस इंडिया. इज इट अ गुड आइडिया व्हेन देयर विल बी नो ड्राइवर्स इन 10 years? बट डू यू थिंक इट इज सेफ टू? ओह, इट्स वेरी सेफ. इट्स सेफर. आपको पता है सड़क पे कितने लोग मरते हैं भारत में हर साल? 1,75,000. But then there will be companies to blame, not humans, when the accident will happen. Well, right? so far the experience is that there have been one-off accidents with self-driven cars, but they are very few. But why do we need self-driven cars? So that 175,000 people don't die on roads. And so that... But we don't know how many will die with the self-driven cars. So far it seems no.
It's not going to happen. It's all on in the data, right? कि वो तो एयरप्लेन्स जो है जब फ्लाई करते हैं 80% टाइम तो ऑटो पायलट पे फ्लाई करते हैं. इवन एयरप्लेन्स सर 2 लोग बैठे होते हैं उसको संभालने के लिए, मैन्युअली उसको हैंडल करने के लिए. But if something goes wrong, yes, there is, but it's rare that autopilot goes wrong. It's very rare. Autopilot बहुत कम ही situations में ऐसा होता है. But let's talk about cars. Let's talk about. हमारे स्काई में इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना हमारे लैंड में होता है. Uber is running automated cars in many countries. Tesla is running an automated car. उनका mainstay product ही automated car है. One-off accidents हुए हैं, but compared to what humans do, it's far less. It's so less. So sir, you are saying कि technology is better than humans. At driving cars, yes, technology is better than humans. Technology is coming from us, right? We are developing the technology, and we are saying that the technology is better than us. Go for the technology, not for us. No, I'm not saying that. What I'm saying is that we develop a technology, that doesn't mean the technology will not be better at some task than us. That's the same logic. If आपका logic अगर मैं use करूँ, तो computer should be worse at calculating than us, because हमने computer बनाया, तो हमारे calculation तो उससे fast होने चाहिए. But calculation तो हमारा वो छोटे से calculator से भी fast नहीं होता. So it's not about, that's not the way to think about it. है ना? Technology will, the reason to build technology and automation is because it will be better at doing something than a human can. What it will not be doing is that it will not have emotions as of now. It will not be able to handle things which require reprogramming on the go. हालांकि वो भी change हो रहा है. We're talking about machine learning and all. जिससे वो भी change हो जाएगा. But जितना बताया जाएगा उतना ही करेगा. है ना? अगर गाड़ी में अगर मान लीजिए एक खंबा गिर जाए और आपने प्रोग्राम नहीं किया कि चलती गाड़ी में खंबा गिरे तो क्या करो, तो उसको समझ में नहीं आएगा वो क्या करे. वो बस सीधी चलती जाएगी. बट एक इंसान होगा तो वो रिफ्लेक्स रिएक्शन देगा. यहां पे टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी. बट इन अ वेल डिफाइंड जॉब, टेक्नोलॉजी इज बेटर देन ह्यूमंस. वी बिल्ड टेक्नोलॉजी, दैट्स फाइन. अ रोबोट मेक्स अ कार फास्टर देन अ ह्यूमन डज. Robots are made by humans. So that is, it's not true that technology which you make will not get better at something which you may be good at. So technology tries better. सारी गाड़ियां अगर ऑटोमेटेड हो जाएंगी तो वो आपस में कोऑर्डिनेट बेटर कर लेंगे ना, because they'll know each other's presence. And take for instance Google Map helps you so much. Yeah, but then it makes you stuck also at the places like where there are no roads. I have my own personal experiences. रास्ता दिखा देता है पर रास्ता होता नहीं है, तो फिर उसके बाद भी क्योंकि डेटा अपडेट नहीं हुआ होता है, इसलिए तो सर आपका जीपीएस ठीक से नहीं चल रहा. अगर कार में कुछ गड़बड़ हो गई, अपडेट नहीं हुआ और ह्यूमन भी उसको हैंडल नहीं कर रहा है, तो फिर उस पे तो इंसानों की लाइफ जाएगी ना. See, I know there are positive and there are negative. See, eventually, see what will happen. But are we ready to take the negative? Are we ready कि हमको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो हम उसका नेगेटिव भी ले पाएंगे? हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है. Is technology going to be perfect? No. Are humans perfect? They're not. There are certain things. Well, sir, at least we come from the nature. Intelligence, artificial intelligence is coming through us. We are making it. It's not real. That's why it is called artificial intelligence. Artificial for us. अगर हमें किसी ने बनाया होगा तो वो कहता होगा हम artificial intelligence है, वो natural होगा. So ये तो cyclic loop है. But what I'm trying to tell you is artificial intelligence with machine learning will be able to self-correct. Now self-correct का मतलब यह है कि जब कोई मशीन गलती करेगी तो बाकी सारी मशीनें सीख जाएंगी उसकी गलती से. That is what will happen. Now whether what time will it take for it to become perfect, and is there something called perfect? I don't even know that. But as of now, 1990s में ना, I was a chess player. Young boy, I was in 1990s. I was a very good chess player. और हम लोग सुनते थे कि chess is one thing जिसमें मशीन कभी ह्यूमन को नहीं हरा पाएगी, क्योंकि बहुत सारा स्पेशियल एनालिसिस होता है और इमेजिनेशन होता है. 1990 में डीप ब्लू आया, फ्रिट्स आया. शुरू में तो वो ग्रैंड मास्टर से हार जाता था. But within a matter of 2-3 years, it started defeating the best grandmasters. Kasparov को हरा दिया था. उस समय का number 1 था, better than Anand. He was really, really good. Kasparov was one of the highest rated players in all time. And Deep Blue was a computer which defeated Garry Kasparov. And we were all shocked. Arey, humans can be defeated by computers in a game which is so strategic like chess. And आज even a small program can defeat a grandmaster. So humans and computers in chess, computers win like every single time. No matter how good a human is.
So computers will learn over time, and they will get better at things which you think they'll not be good at. I would not be surprised if computers someday are able to program emotions. And who will put those emotions? The technology will not do it itself. The evaluation, it will have to come from us, right? So can we make an algorithm for emotions is the question. I don't know. Maybe. What are they? Maybe. You said maybe, right? Anything. For example, fear. Fear is an emotion. Fear is the most basic emotion. डर लगता है कि जान चली जाएगी या चोट पहुंच जाएगी, तो हमें भय आता है. हमारे केस में एक पर्टिकुलर हार्मोन है, वो सेक्रीट होता है, उसकी वजह से एड्रेनलाइन रश आता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं. फियर है. हैप्पीनेस अगर है तो सेरोटोनिन आएगा, अगर प्लेजर है तो डोपामीन आएगा. सो वी आर प्रोग्राम्ड थ्रू सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन्स. In the same way, so we are also programmed in that way. ये निकलता है तो आपको फियर आता है, वो निकलता है तो साथ नहीं बोलेंगे ना. We are the seed of the divine, right? We come from the nature. हम में कुछ भी ऐसा नहीं है which we can say is programmed. If we are divine, then we are programmed, sir. By society we are. Yeah, we are. Societal programming is there. in computer called machine learning. You are when right. computers learn from each other, it's through the internet. हाँ जी. Then it's a cloud-based machine learning. So सब कुछ cloud में है, और जो blockchain होता है ना, कि एक जगह चेंज होता है तो दूसरी जगह चेंज होता है, सब जगह रिफ्लेक्ट होता है. That is like society of computers. It's just that computers learn in a digital way and we learn in a physiological way, which is carbon-based, electromagnetic. आपके अंदर भी electromagnetic है. आपकी एक sensation एक magnet और electron के movement पे based है. न्यूरॉन एक दूसरे को electromagnetically sense करती हैं. And you are basically an atomic product made up mostly of water. You are 70% water, which is simple water, nothing more than water. So you are a big giant water molecule with very tiny electrical pulses and with some other elements like carbon, calcium and so many things. And here are you, right? So that's your existence. But there's still more. We are more than the body and the mind and these are cells and everything, because we are able to create this world. The world we are sitting in it is created by humans. No, it's not. I think it's the world existed well before us. But in the world today we are sitting in this, it is created by us, right? Everything, the money, the architecture, the education, the environment, it is all run by us. Nature is not taking care of it. We have taken the control of it, right? No, we haven't. To think that we have taken control of nature, or we are trying to take the control. It is, as a species, if we start thinking that you can control nature, we are mistaken and misguided at so many levels. So ये AI का थोड़ा ऐसा. Nature is so intelligent that nature will wipe us like this if it wants. You know, you think your brain is intelligence? Every single cell in your body has got 2 to 5 meters of DNA. साड़ी के लंबा जितना DNA. एक सेल में 27 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके अंदर. मल्टीप्लाई करिए तो आप सूरज के कम से कम मेरे ख्याल में अर्थ को पूरा रैप एक बार नहीं कर लेंगे, 1000 बार कर लेंगे. 1000 की संख्या होगी. We are more than body and mind. So what I'm saying is that there's natural intelligence in you. ठीक है. So to say that we can control nature is never going to happen. You are in a tiny little planet, in a tiny little time zone, and there are trillions and trillions of Earths in this universe, and then there will be multiple universes, and then there will be trillions of universes spread across space-time. So you are nothing, and I'm nothing. I can control nature. Nature is far more bigger than us. So we are just a little figment of a water molecule which thinks it is really smart. And we are trying to make our world better by the technology. Yeah, so that's your world. That's our world is a little world. There may be another civilization which had much better technology than we do. हम तो बहुत ही पीछे हैं टेक्नोलॉजी में. अभी क्या टेक्नोलॉजी? What do we use for a car? Dead plants and animals. हम मुर्दे पेड़ और मुर्दे जानवरों के गलते शरीरों से निकलने वाले तेल को अपनी गाड़ी में यूज करते हैं. That's our primary source of fuel. That is the level of technology we have. Now imagine a species which is 3 steps above us or 2 steps above us, जो हमसे 500 साल भी आगे होगी. वो क्या करती होगी? It will be much better. It will be extracting energy from stars, and that's the true source of energy. In the cosmos में तो real energy तो stars में है ना. हम भी करेंगे. 300-400 साल लगेंगे. So it will give us some time, right? Number 1. Number 2 is the thing which we are discussing is that by inherent virtue, are we going to be always smarter than AI?
हम सवाल वहीं से शुरू हुआ था, इमोशंस से हमने बात किया था. See, many of the emotions are programmable. They are based on something called response to stimuli. So अगर कोई चीज डरावनी दिखती है तो आप डर जाते हैं, भय आ जाता है, आपके अंदर एड्रेनलिन आ जाता है, आप जल्दी भागने लगते हैं. कोर्टिसोल रिलीज होता है. देन अगर आपको कोई चीज अच्छी दिखती है जो आपको पसंद है, तो जैसे खाने की कोई चीज पसंद है तो आपको डोपामिन आ जाता है और आपको प्लेजर फीलिंग आने लगती है. Machines can be programmed to do all this. The only problem which we don't know yet, that doesn't mean we'll never know, we may not, is consciousness. Yes. So if the act that you are alive is dependent on you being able to know that you are different from me and that you exist, that feeling that you exist, Yes. can it be programmed? Now? Not now. Can it be programmed in future? We don't know. The answer to that is not no. It's that we don't know. And it may take some time, it may take zyada time, it may never be in our capability, but that doesn't mean some other species has not done it. We don't know all that. But as of now, we can't. But then there were many other things which 40 साल पहले मैं आपको बोलता हम नहीं कर पाते, हमें नहीं पता. लेकिन अब हमें पता है. हम बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं मशीन से, जो मशीन लर्निंग फॉर इंस्टेंस, मशीन एक दूसरे से सीखें, was something आज से 30 साल पहले आप किसी से पूछते तो वो बोलता है I don't think so. And today we do. So a lot of things will happen in time, but we don't know whether we can create consciousness. सर सब कुछ मशीनें करेंगी, हम क्या करेंगे? मशीन बनाएंगे, मशीनें बनाएंगे और मशीनें काम करेंगी एक दूसरे के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम ultimately you will we want to be lazy? You'll have three kinds of people. Okay. People who choose to be in human bodies. हाँ. People who choose to be in cyborgs. हाँ. जैसे ये हाथ ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो एक मशीन का हाथ लगा लिया, है ना? It's already happening. लोग अपने कान लगवा सकते हैं, आंखें भी में कुछ चीजें, लेंस वगैरह तो आप मशीन ही लगवा सकते हैं. But this is crazy, right? We already doing it. How is that crazy? Tell that to a person who has a pacemaker. उसने मशीन लगा रखी है अपने हार्ट में. Tell that to a person जिसने for certain needs it's fine, but certain needs के लगाएंगे. But for unnecessary things we developing. Who will decide what's necessary? मेरे को चाहिए पावरफुल हैंड चाहिए मेरे को ऐसा, तो मेरे को ऐसा हैंड चाहिए. पर दूसरे के लिए तो गलत है ना, डिसएडवांटेज है ना. Well, it's the same disadvantage. अगर कोई फरारी खरीदता है और वो 300 की स्पीड पे जाता है और कोई स्कूटर खरीदता है वो 60 की स्पीड पे जाता है, तो वो भी अनफॉर्चुनेट है. तो मनी का डिसएडवांटेज है. Resources will be a determining factor. Second kind of people which will exist. So now we will have to compete with the technology, with the artificial intelligence. Totally. The biggest problem would be that people will actually produce designer babies, which means that if you can really afford it, you can create a human baby with exact features you want. So you can create a 6 foot 6 inch ka bachcha. But why, sir? Why somebody wants to play with the nature like this? Would you not want your child to be the most intelligent person? No, I just want that my child to be healthy when the child. A lot of people would. A lot of people spend their lifetime in the best schools, sending their children to 500 coachings and giving them all kinds of shank pushpi to make them smart. Okay? Now here's a way in which you can embryonic level per you can change this person's IQ and to be a super intelligent person and give them a head start. But that's wrong, na sir. That's wrong to the other children who are getting born naturally, and then because of the power of money and technology, you are able to produce a child who is not natural, who looks like natural, who acts like natural, but it is made by you. It is not made by nature. Genetic advantage. It's a genetic advantage. It is as wrong as have people who have money send their children to the best colleges by paying their way through, and those who cannot afford are left laggard in colleges and schools which are not optimal. और लाइफ में वो डिफरेंस उनके साथ हमेशा रहता है. तो सर, we have already, convinced ourselves to live with the poor and the rich discrimination, right? Now उसके साथ जीना कि we have to compete with the technology. खुद की technology develop. I said it's a big pain. It's going to be a matter of concern because then what will happen? Even now, imagine what will start happening. Certain humans who can afford it will become. तो आपने evolution को jump start कर दिया. And certain humans who can afford it will become stronger and better and smarter and taller and healthier and with blue eyes. So it will be not natural others. World. No, then what will happen is you'll have two kinds of humans. The Homo sapiens poorus and the Homo sapien riches. Right? So ये गरीब और अमीर इतने दूर हो जाएंगे कि ये दोनों एक जैसे ही नहीं बचेंगे.
So तो ये right थोड़ी है हाँ to बिल्कुल राइट है, मैंने कब कहा राइट है? to play. I'm just telling you what is going to happen, not that I have a This moral is judgment. scary to even listen. It is scary and it is going to happen, but it already happens in a way. But imagine the time when you can conquer death, when I can take my memory and put it in another human body if I can afford it. Then the richest will not even die. They will live forever. Death is a big leveler. Everybody dies, whether you're the president of United States or you are the beggar on the We are street. bound in a time. On earth, we are bound with the space and time, right? We cannot defeat that. जो भी जन्मा है वो तो जाएगा ही, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चींटी हो, उससे कैसे विजय ले सकते हैं? एक्सपायरी तो है ही, काल तो चल ही रहा है ना। The richest countries in the world, जापान ले लीजिए। जापान की औसत आयु 90 साल है। अफ्रीका के एक गरीब देश जैसे कि लेसोथो है, वहां पे औसत आयु 50 साल समथिंग होगी। लगभग दुगना जीते हैं जापानीज, बेस्ड ऑन हाउ मच दे वांट, लार्जली, क्योंकि उनकी हेल्थ केयर बेटर है, उनकी फैसिलिटीज बेटर हैं, उनके यहाँ HIV नहीं फैला हुआ है जैसा लेसोथो में फैला हुआ है ना। इंडिया की औसत आयु करीब 72-73 साल है, वो भी करीब 2/3 और 3/4 ऑफ जापान है। सो रिच कंट्रीज टुडे हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन्स already. So this discrimination जो आप, what I'm trying to tell you is this, everything which you are opposing right now and you are saying कि ये तो बहुत ही गलत है, ये तो already हो रहा है। It's just that वो scale थोड़ी कम है और articulated नहीं है। Eventually अगर जो लोग rich countries or rich people, if they can afford things like organ transplant, you know, and DNA print से, मतलब दूसरे का organ नहीं लेना, अपना ही organ खुद ही grow करके खुद ही transplant कर लिया, 20-30 साल यूं जुड़ जाएंगे। अगर हमने ये अचीव कर लिया कि हम ह्यूमन थॉट्स को एक कंप्यूटर पे स्टोर कर दें और एक दूसरी ह्यूमन बॉडी में डाल दें, तो फिर तो कोई मरेगा ही नहीं कभी। सो दोज हु कैन अफोर्ड विल बाय ह्यूमन बॉडीज एंड जस्ट शिफ्ट देयर थॉट्स इनटू इट। जैसे आप एक गाड़ी में बैठती हैं, उसको फेंक देती हैं, दूसरी ले लेती हैं, वो पुरानी होती है तो तीसरी ले लेती हैं, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ बीइंग अनफेयर बेस्ड ऑन हाउ मच मनी सोसाइटीज और पीपल हैव एग्जिस्ट्स। The fear is that technology will only make it worse. And our primary focus is money. We are taught to, you know, to be focused on money rather than ourselves. Resources. Resources. Money नहीं, resources. It's always been resources. And you can only afford resources through money today. Money is a resource. But so many other things. Money is a very monetizable resource. But money की value तब पता लगती है जब suddenly demonetization हो जाता है, तो money feels less of a resource. So money is a very notional resource. Money is what you and I imagine and agree to believe in. Otherwise, money is nothing but paper. The point is resources. But it is more than paper, sir. Well, demonetization के time. We have given the paper to be more than a paper. You should have heard the Prime Minister say, अब उसका वैल्यू सिर्फ कागज के बराबर है, 1000 के नोट का। रातों रात मनी की वैल्यू गिर सकती है। And that's the thing. Owning money does not give you power. The ability to keep that money powerful gives you power. Because the really powerful in this world can finish your money in no time. Because money is imagination. It's an imaginary product. Money is extremely imaginary. There's no tangible value. 100 रुपए के नोट की वैल्यू अब वाकई में कागज और इंक के अलावा कुछ नहीं होती है, लेकिन उस पर 100 रुपए लिखे होते हैं और एक हस्ताक्षर होते हैं जो खुद नहीं होते, बार बार प्रिंट करके लिखते हैं, उसकी वैल्यू 100 रुपए हो जाती है। जिस दिन वो डिमोनेटाइज हो जाता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो मनी इज ओनली एज मच एज द परसेप्शन लास्ट्स। Resources is more real in that sense. But anyway, चलिए money भी ले लेते हैं। But yeah, the truth is that technology, we will probably have to cope with the time where technology will accelerate the process of the gap between the rich and poor. And we need to actively work on how to avoid this. वो कैसे किया जाए, कैसे हम इंश्योर करें कि टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, that remains accessible to those who are needy. अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, ऑर्गन प्रिंटर्स ले आते हैं और उससे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्रिएट करते हैं, तो कैन वी क्रिएट इट इन अ वे सो दैट इट इज इक्विटेबल, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, स्पेशली इफ यू कम फ्रॉम अ वेस्टर्न फिलॉसफी, जहाँ पे कोई भी दवा आती है तो उसको बहुत महंगा करते हैं शुरू में, ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमी में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं पहले उनको बेचो, फिर दूसरों को बेचो, फिर तीसरों को, फिर चौथों को। That's how the Western economic model works. It's not a very, हमारा नहीं है वैसा usually, लेकिन this we will have to face.
with technology as well. जिस दिन ऐसी चीजें आएंगी, especially related to biosciences, especially related to things which I'm telling you. Designer babies and Designer babies, yeah. Well, It's happening. It's already happening. So it's not I'm saying it's going to कि आने वाला है, ये तो होना शुरू हो गया है. So don't you think there should be a limit in It is. India में तो forbidden है. there should be a limit to, you know, ban है. इंडिया में तो नहीं अलाउड है. मोस्ट कंट्रीज में बैंड है, बट टू अ लिमिट ना. अब जैसे कुछ कंट्रीज में उन्होंने खोलना शुरू कर दिया इस चीज को. यूके में थोड़ा सा उन्होंने अलाउ करना शुरू कर दिया है. सो दे आर सेइंग फॉर, देखिए इसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, बिकॉज देन पीपल कैन चूज दैट कोई बच्चा जिसको कॉन्जेनिटल डिजीज है, आप उसको क्रिएट सही भी कर सकते हैं. जैसे कुछ फैमिलीज में, एंड आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, नाउ यू आंसर मी, राइट? सो यू डोंट लाइक सुपर बेबीज विद सुपर ब्रेन्स बीइंग क्रिएटेड? No, I don't like unnatural babies. Okay, so would you like with this? Unnatural powers. So would you like this? Suppose there's a baby born to two people who are thalassemic. The baby is going to be thalassemic major. He's going to have a very tough time, probably not survive. Would you then say कि ठीक है, इसको एम्ब्रॉइक लेवल पे इसका जीन मैनिपुलेट कर देते हैं और इसको थैलेसीमिया से बचा लेते हैं? और कैंसर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों साइड पे कैंसर है, मदर फादर साइड पे, और वो बच्चा is almost at a huge risk, not almost assured, but at a huge risk of suffering through this dreaded disease. Would you recommend that we do a genetic experiment on this embryo and remove that damaged DNA का part जिससे कैंसर सुबह होता है, and we heal it? Would you recommend that? I don't know, sir. I don't have answer for that, honestly, because agar if one can do that, then still the child will die, you know. The expiry, we all come with the expiry date. हम genetically, technology wise अपने आप को we can, you know, extend our life or we can heal ourselves, but eventually humans can't defeat the death, right? I'm not talking about defeating death. I'm saying the child will not die when he's dead. I'm saying he'll live a healthy life till 80 or whatever. We are choosing to give the child a healthy life. But would you choose that? I don't know, sir. By that logic, why do we give medicines to people? To heal. That's unnatural. Most medicines are chemically produced. They are biocompounds. They are not naturally. Ayurveda थोड़ा देते हैं. Why do we do that? So see, I'm not trying to pull you down. What I'm trying to tell you is that it is very difficult to come to a point. Extreme stand तो नहीं ले सकते ना. आप भी नहीं लेना चाहेंगे, मैं भी नहीं ले सकता, कि सबको डिजाइन कर दे, या बिल्कुल अननेचुरल अलाउड ही नहीं है कुछ भी. फिर तो मेडिसिन भी नहीं अलाउड है, कुछ भी नहीं अलाउड है. फिर तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं अलाउड है, वो भी अननेचुरल है. So the point is you have to find a balance, and that is where spirituality, discussion, and an agreement in a democratic way is needed. Because और ये फजी होगा, आज हम अग्री करते हैं, कल हम उसको शिफ्ट करेंगे, ये करना पड़ेगा, और हुआ है, पहले भी हुआ है. So this will happen. It's the most, not the perfect, but the optimal way of deciding. If one person is given the decision कि एक डिक्टेटर है सबको डिसाइड करेगा, तो वो भी नहीं चलेगा. और हर चीज पे अगर हम वोट ही लेते रहेंगे तो वो भी नहीं चलेगा. रेफरेंडम भी नहीं कर सकते. हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अननेचुरल नहीं होगा, फिर तो दवा खाना बंद कर देते हैं. हम ये भी नहीं कह सकते कि सब अलाउड है. टेक्नोलॉजी हैज अ फ्री रेन. So what I'm trying to, the reason I asked you this question was to make you think that there is a middle ground which is wiser place to be. And that middle ground we have to, my will may be different from yours, but we'll have to come to an agreement for each one of us. And that is where social sciences will play a huge role in where science goes. That is where spirituality will determine where technology progresses. That is where democracies, even flawed ones, even the ones जो western outlook से हम तो flawed democracy हैं, भाई अंग्रेजों ने तो हमें flawed democracy का दर्जा दिया है, लेकिन flawed democracy भी better than no democracy है. And that is where we, with our so-called whatever democracy they gave us, I don't think we're flawed, but that is where democracy, despite being slow and messy, जैसा आपने बोला कि धर्म पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, सब चलेगा, लेकिन आपको डिसाइड करने का मौका तो मिलता है ना, चाहे आप जिस चीज पे डिसाइड करिए. कोई धर्म पे वोट मांगता है, आप डिसाइड करो देना है नहीं देना है, वो तो आपका डिसीजन है ना. कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कह रहा है कि जा करके आप धर्म के उसी को तो इसी जगह वोट दबाओ. बट इन्फ्लुएंस तो होते हैं लोग, वो आपकी प्रॉब्लम है ना. इन्फ्लुएंस तो लार्ज वे में किया. आप खुद ही इन्फ्लुएंसर हैं, है ना. सो नहीं सर, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं तो सीखती हूं जिंदगी से, मेरे को सिखाना नहीं. Influence is something which is fine. There's nothing wrong in somebody trying to influence you with anything as long as it is not pure lies. और अगर है भी तो उस लाई को चेक करने की जिम्मेदारी आपकी भी है.
झूठ नहीं बोलना अच्छी बात है, बट जो बोलेगा इसका मतलब ये नहीं कि अगर झूठ बोलेगा तो मैं सब सुन लूंगा, वो मेरी भी गलती है। प्रमाण तो मुझे भी ढूंढना है ना। पर ये भी नहीं पता ना कितना वो झूठ है या नहीं। पता करिए जाके, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदार नागरिक तो वही है, अदरवाइज यू विल बी ऑलवेज फूल्ड। आज ये कर रहा है, कल कोई और करेगा। द प्रॉब्लम इज we need to get rid of this habit of blaming others for things which affect us. We are affected by only one person, which is me. कोई झूठ बोलता है, मैं मानता हूँ गलती मेरी भी है, उसकी गलती जो है वो रहे, उसकी गलती है, बट मेरी भी तो गलती है। ये सोचना कि अरे इसने मेरे से झूठ बोला, इसने मेरे साथ ये किया, इसने वो किया, धोखा दिया, उस चीज पे आपका भी हाथ था। You were naive, you did not verify, you were gullible, you believed in whatever was told without checking the facts. That's my mistake as well. I'm not saying that person is scot free, but मेरी भी गलती है और मुझे इस गलती से सीखना चाहिए ताकि अगला व्यक्ति ऐसा ना कर पाए, है ना। So I think that's where democracy will play a role. Where does technology go? Where do you draw the line कि अब ये ज्यादा हो गया? हाँ। कब हो गया? अगर ऑटोमेटेड कार लानी है तो क्या नहीं लाएंगे? या हम कहते हैं चलो 10 साल तक तो नहीं लाएंगे, 10 साल तक इन लोगों की जॉब सिक्योर रहेगी, हम अगले जनरेशन के ड्राइवर्स ट्रेन नहीं करेंगे, हम उनको कुछ और ट्रेन कराएंगे। जो लोग इस समय वृद्ध हैं या अनुभवी हैं, जिनको हम वापस रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, उनको गुजर जाने देते हैं। 60 साल की उम्र में रिटायर होता है मान लीजिए व्यक्ति, तो इनको 60 साल तक चलने देते हैं, इनको 10-15 साल की सिक्योरिटी दे देते हैं, एंड देन गो अबाउट इट। बट ये तो होना तो है ही। विल यू से कि मैं हाइड्रोजन कार नहीं लाऊंगी? यू कांट से दैट। पोल्यूशन कैसे कम करूंगा मैं? दिल्ली में 32% पोल्यूशन होता है सिर्फ व्हीकुलर गाड़ी से निकलने वाला। अगर मैं हाइड्रोजन फ्यूल निकाल दूंगा तो हाइड्रोजन फ्यूल से जो निकलती है चीज वो हाइड्रोजन ऑक्साइड होती है, यानी कि पानी होता है, H2O वो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। पानी निकलता है गाड़ी से, पोल्यूशन जीरो हो जाता है। टेक्नोलॉजी है। जब ये आएगी तो जितने लोग पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, जितने लोग पेट्रोल इंजन पे काम करते हैं, वो सब जॉबलेस हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू चॉइसेस, डोंट डू इट एंड लेट जो लाखों लोग मरते हैं पोल्यूशन से उनको मरने देते हैं, या हम कर देते हैं और कुछ हजारों लोगों को जॉबलेस बना देते हैं। टफ चॉइस। और जो कंट्रीज की इकोनॉमी फ्यूल पे डिपेंड करती है, दैट वी टेक फ्रॉम देम, देन व्हाट? वो कंट्री सबसे आगे चल रही है इस समय। हाँ। दुबई एंड यूएई इज लीडिंग रिसर्च, नॉट नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 1 तो हम ऑलमोस्ट इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट, बट जो कंट्री इस समय बहुत ज्यादा आरामको करके उनकी जो कंपनी है ना ऑयल की, इट इज फोकसिंग हेवीली ऑन ब्लू हाइड्रोजन, दे आर फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन। अगर हम ही बनाते हैं हाइड्रोजन, पता है हमें कि नहीं चल पाएगा तेल ज्यादा दिन, बट मेरा क्वेश्चन ह्यूमैनिटेरियन एंगल से है, मैं क्या करूं? शुड आई अग्री कि मैं दिल्ली में हजारों लोगों को दमे से मरने देता हूं, या मैं दिल्ली के हजारों लोगों को जॉबलेस बना देता हूं? व्हाट डू आई डू? आई हैव टू फाइंड अ वे कि मैं धीरे धीरे इनका जॉब घटाऊंगा और इनको रिहेबिलिटेट एज मच एज पॉसिबल करता जाऊंगा, लेकिन इनको भी तो बचाना है मेरे को। जो हर नवंबर आकर के लोग खांसते रहते हैं, आंखें बहती रहती हैं, छुट्टी पे रहते हैं, बिकॉज पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है। आई हैव टू फाइंड अ वे, एंड दीज आर हार्ड चॉइसेस which will be taken, which will have to be taken, and they will not be painless, and they will also not be fruitless. उनके fruits भी हैं और pains भी हैं। पेड़ को हिलाना पड़ता है, पेड़ को दर्द होता है, fruit तभी गिरता है, तो थोड़ा दर्द भी होगा, लेकिन उसके fruits भी होंगे। So that is the choice which whoever is, you know, the next prime minister and the next prime minister, next 2-3 prime minister will have to make this big choice कि कितने पेस से हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करनी है। Sir, who you wish to be a next prime minister? Someone who understands that we are going to face very challenging decisions, and who understands that the opportunity of India, which it has now, it requires extremely bold action. And do we have a capable person like that? We have many capable people like that. Can you name one? No, I think everyone on the foray. I don't want to name one because एक को मैं miss out कर जाऊंगा तो उसको लगेगा कि you know I'm not supporting that person. Okay. But I'm telling you, I think a lot of people with their own varying capacity and within a party कई लोग होंगे जो they are all capable to lead India, and there are people who are outside politics who are very much you know capable of leading India. I think they are fantastic choices, and there some of them are very young who I think will grow up to be extremely potent leaders of India of tomorrow. So India has no dearth of leadership. which I see in US for instance. मेरे को US में लगता है lack of leadership है, मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो मतलब he can't walk straight and the other person is such that वो तो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है,
सो दे सीम टू बी हैव अ डेप्थ ऑफ लीडरशिप, बट हमारे पास तो अच्छे नेता हैं और काफ़ी हैं, कई हैं. सबकी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट है और होगा भी नहीं कोई परफेक्ट, एंड पीपल विल चूज हु इज गुड. बट आई कैन टेल यू वन थिंग दैट आई डोंट थिंक इंडिया विल बी इन अ लीडरशिप क्राइसिस फॉर द नेक्स्ट 20 years. वो नहीं होगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन से निकलने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट भी निकलते हैं तो रिक्शे वाले के बच्चे ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, है ना, कि एक बैंक के बाहर एक गार्ड का बच्चा IPS बन जाता है. हमारे यहाँ एक गांव के शिक्षक जो है भारत का रक्षा मंत्री बन सकता है. उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी शिक्षिका थी. मायावती वाज आल्सो अ टीचर, है ना. कोई हमारे यहाँ चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है. तो सबकी कहानियां हैं, अलग अलग पार्टी से, ऐसा भी नहीं है कि एक पार्टी से. इट्स आवर कल्चर. हम लोग ट्रू डेमोक्रेसी तो यही है ना कि आदमी कहीं से निकल करके भी लोकप्रिय बन सकता है. उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप US में, हम कहते हैं यहाँ पे हेरिडिटरी है, आप US में देखिए कितना है. मतलब ट्रम्प का खानदान 4 जनरेशन तक, ट्रम्प तो वॉज अ बिग मैन फॉर 3-4 generations. बाइडेन को देख लीजिए, द वे ही एंड हिज सन एंड ऑल दिस हैव अ बिग नेक्सस. बुश फैमिली देख लीजिए, क्लिंटन फैमिली देख लीजिए. तो हम बोलते हैं हमारे यहाँ ये क्या है कि नेता का बेटा नेता, नेता की बेटी नेता बन रही है. वहाँ पे तो फिर भी हमें संघर्ष करवा देते हैं हम उनको. वहाँ पे तो एकदम ही क्लीन टिकट है, एकदम सीधे प्रेसिडेंट ही बन जाओ. इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग. हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा. सो वी आर ट्रूली अ डेमोक्रेसी एंड अ रिपब्लिक. हम रेजिस्ट करते हैं साम्राज्यवाद को, हम रेजिस्ट करते हैं परिवारवाद को, हम रेजिस्ट करते हैं बाय डिजाइन. होता है बट अच्छा नहीं लगता. और जो परिवारवाद से आते हैं उनको डिफेंड करना पड़ता है, ये कहते हुए कि हाँ मेरा परिवार था लेकिन मैंने भी काम किया है. दे हैव टू जस्टिफाई देयर प्रेजेंस देयर. US में ऐसा नहीं होता है. US में तो कहते हैं अरे मेरे पिताजी थे राष्ट्रपति तो मैं भी हूँ, उनका सीख लिया मैंने भी. दैट्स हाउ देयर लॉजिक इज. वी डोंट हैव दैट लॉजिक. So we are, so I think India is very well poised and there are multiple leaders who can do that, right? Thank you so much, sir, for being on our show and giving us such an intellectual conversation and knowledge and your take on AI. It was lovely. Thank you so much for giving us your time. Thank you. Wonderful to have you, and I wish you all the best for your podcast and as an author. Okay. Have a fabulous time ahead, and it was a real pleasure to be here. Thank you so much. Okay.